So our topic is of geography. The next topic is human resource, and we will discuss about this resource, human resource in detail. Okay, as we know, the resources are of mainly three types: natural resources, human-made resources, and as well as human resource itself. Human is also a resource. So how human it is considered as a resource, how it is important, okay, what things are included or what things we keep in mind while analyzing this resource, all these things we discuss. So first of all, we have discussed the meaning kya hai by human resource. We mean the population of a country, the people of a country, but the people, their education, their health, their motivated minds. Okay, so all these things we take into consideration. Okay, their health and their education, their skill, their training, all comes in education. Okay, and the motivated people or population. So it means population is also a resource for a country. Okay, so it is also very important human resource any country is having. So we will discuss not about only one country, so as a whole human resource on this earth. Okay, so human resource, like other resources, that are not equally distributed all over the earth. So that is same human resource. It is also not equally distributed. Okay, all over the world. पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मींस कि some countries they have more population and some countries they have less population, or some areas or some continents of earth they are having more population and some continents are having less population. It means this, it is not equally distributed, or that we will discuss in its heading the distribution of population. ठीक है, तो किस हेडिंग में हम ये डिस्कस करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में. ठीक है, सो इसको हम ये भी कहते हैं कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा पैटर्न है. ठीक है, बिकॉज अब एक मिनट, जैसे आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, आपकी बुक में कुछ डाटा जो दिए हुए हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. ठीक है, सो मे बी कुछ जो यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं वो वेरी कर सकती हैं, साथ साथ में हम डिस्कस भी करते रहेंगे. तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है. सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितनी है. सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कितनी है अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो दैट इज नियर 7.9 बिलियन. यहाँ पे 6.6 बिलियन दिया हुआ, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इट इज नियर 8 बिलियन, है ना, मतलब 8 बिलियन तक पहुंच गई अब. सो एक और चीज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है, इट हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है, तो दिस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इट वाज क्रिएटेड इन 1985. ठीक है, फ्रॉम 1985 टिल 2020 इट वर्कड एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, but now its name has been changed to the Ministry of Education according to this new education policy. Okay, when it was adopted, so its name is changed, Ministry of Education. So that is, अब Ministry of Education is related to the humans, their education. So it is, name is changed, it is also human resource development ही है. ठीक है, through the education. और इट मीन्स कि अगर इस तरह की मिनिस्ट्री बनाएगी, इट मीन्स स्पेशल केयर इज बीइंग टेकन बाय द डिफरेंट कंट्रीज फॉर दिस इंपॉर्टेंट रिसोर्स, कि ये कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट भी इस और क्या करती है, अपना ध्यान देती है. ठीक है, सो अब हम बात कर रहे थे कि दिस पॉपुलेशन, दिस ह्यूमन रिसोर्स, इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है,
सो यहाँ पे अब ये जो फिगर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, so these it is shown that this color, this is means every 100 people in the world, you can say one of the figure has been taken. So this number of people, they are living in Asia. This number of people, they are living in Europe. This number of people, they are living in Africa. This number of people, this is just as a you can say approximately, है ना? Live in Central and South America. These people live in North America, and these Oceania, Australia, New Zealand and Pacific Island, all these people, है ना? और यहाँ पे अब यहाँ से आप you can imagine that which continent is having the largest population. हाँ जी, so इसी को ही स्टडी करके आपने बताना है मुझे. Yes, अकुल. हाँ जी, so which continent is having the largest population? It is Asia. So Asian continent, it is having largest population, and which continent it is having least population? मैम अंटार्कटिका. Yes, अंटार्कटिका भी कह सकते हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट, है ना? तो अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन की कमी है, ओशियानिया में है, अंटार्कटिका में तो रहते ही नहीं है ना, पॉपुलेशन ही नहीं है. तो ऑस्ट्रेलिया में है सबसे कम पॉपुलेशन, और साथ ही साथ ओशियानिया, ये पैसिफिक आइलैंड के कुछ आइलैंड्स हैं, तो इन सबको उसी के साथ ही है. तो आप ऑस्ट्रेलिया भी बता सकते हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया. और अगर हम सिर्फ अंटार्कटिका की बात करें, वहां पे तो सिर्फ रिसर्चर्स के कुछ ही हैं, तो वो वहां पे की इनहैबिटेंट्स नहीं है, ठीक है, नो पॉपुलेशन अंटार्कटिका की, वो नहीं हम कंसिडर करेंगे. तो अब यहाँ पे तो इट मीन्स कि अगर हम पूरी अर्थ की भी बात करते हैं, सो दिस पीपल अक्रॉस द अर्थ, दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. और यहाँ पे एक और मैप और भी दिया हुआ है, ग्राफ भी दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, ऊपर कॉन्टिनेंट्स की बात की गई है और यहाँ पे कंट्रीज की बात की गई है. और ये भी दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है. तो इसमें से भी नाउ बाय रीडिंग दिस whole table, what idea comes in your mind, which is the most populous country here? Who will explain? हाँ जी, this graph. हाँ जी, तो रन्या. In China, population is the most, and the least population is in Japan. Yes, according to this graph that is shown, ठीक है, according to this 2011 census, the most populous country is China, ठीक है. But as the population of the country is increasing, it is estimated that India will be the most populous country, है ना? तो as the rate of increasing the population is there. So according to this graph, so China is the most populous country, and this Japan, it has the least population according to this graph, ठीक है. So any graph type question may also come to read the graph and then answer the questions, है ना? इस तरह का भी हो सकता है. So अब ये हो गया हमारे माइंड में कि पॉपुलेशन जो है या ह्यूमन रिसोर्स जो है, that is not equally distributed, or distribution of population, it is not equal. Pattern of distribution of population is different. कि यहाँ पे अगर हम लैंड सरफेस की बात करें तो ओनली 90% जो पॉपुलेशन है, 90% ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिविंग इन ओनली 30% ऑफ लैंड सरफेस. जो हमारी अर्थ का हम कह सकते हैं कि लैंड सरफेस है, उसमें 30% में 90% पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में ही है ना. तो जो एशियन कॉन्टिनेंट में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो 30% लैंड में 90% पॉपुलेशन जो है ये एशिया और अफ्रीका में ज्यादा है, ठीक है. तो इट मींस अब हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ एरियाज क्या है, क्राउडेड है ना. तो कुछ एरियाज मतलब वहां पे पॉपुलेशन, अब इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. कुछ एरियाज क्राउडेड है, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, देन द यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका,
ठीक है, और इसके रीजंस भी होते हैं कि क्यों व्हाई सम पीपल प्रेफर टू लिव इन सम पर्टिकुलर एरिया, क्यों वो प्रेफर करते हैं कि इस एरिया में रहेंगे उस एरिया में नहीं रहेंगे, है ना। सो जैसे कि वेरी लेस पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, जो हाई लैटिट्यूड के एरियाज हैं वहां पे लोग रहते ही नहीं है। मिडिल लैटिट्यूड जो है या नियर द इक्वेटर, साउथ और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर द पीपल लिव, है ना। अबाउट द 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। मीन्स 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल दे स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज एंड ऑल ऑफ देम हैव 100 मिलियन पीपल। तो यहाँ पे हम डाटा को देखिए, क्या हमें लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट सेम, ठीक है, इट इज नॉट इक्वली। तो इससे हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉट इक्वल ऑल ओवर द अर्थ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट इज समवेयर इट इज मोर एंड समवेयर इट इज लेस, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ द पीपल, है ना, कि हाउ मच नंबर ऑफ पीपल दे आर लिविंग इन एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो लैंड एरिया है पर स्क्वायर किलोमीटर वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, यूनिट मतलब कितने लैंड एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि जैसे अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइज जो डेंसिटी है वो कितनी है, 51, पूरे वर्ल्ड की 51 पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। डेंसिटी कि मतलब इतने पर स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मच नंबर ऑफ पीपल दे आर लिविंग। तो पूरे वर्ल्ड की एवरेज अगर निकाले 51 है, और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो जैसे आपकी बुक में 382 पर्सन दी हुई है, तो दैट इज अगर प्रेजेंट की बात करें तो इट इज नियर अबाउट 460, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसकी अकॉर्डिंगली अगर, ठीक है, तो देन यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट एरियाज डेंसिटी। तो इट मींस इससे ये आइडिया क्या लग रहा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। सम एरियाज दे आर हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सम एरियाज दे आर हैविंग लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो सच एज द साउथ एंड सेंट्रल एशिया दे आर हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया यहाँ की, और लोएस्ट डेंसिटी। अब डेंसिटी का मीनिंग, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सिटीज की, तो सिटीज के एरियाज क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं, ठीक है। सो सिटीज के एरिया कैसे होते हैं, सिटीज एरियाज आर क्राउडेड, तो इट मींस वहां पे डेंसिटी कैसी होगी, देयर डेंसिटी विल बी मोर। और जहां पे क्राउडेड नहीं है, वेयर द एरियाज आर नॉट क्राउडेड, इट मींस वहां पे डेंसिटी कैसी है, लेस। सो डेंसिटी कैन बी हाई एंड इट कैन बी लो। Yes, Akul. So now how will you define density of population? Keep your video on, beta. हाँ जी Akul. How will you define density of population? Yes. Ma'am, density of population is number of people by area of land. Yes, so number of people they are living in per unit area of land. ठीक है, कि how much such as in world density हम देखें तो that is 51 persons per square kilometer, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की ज्यादा है, ठीक है। तो इट मींस इंडिया हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन और why people prefer to live in some areas or why people not prefer to live in some areas, so it means there are some factors which are affecting this distribution, which are affecting this density of population, ठीक है। So there are some factors which affect this distribution of population and density of population. Good afternoon, ma'am.
Yes, so there are some factors which are affecting this distribution of population. So these factors, they can be geographical factors. ठीक है, तो ये factors हम distribute कर सकते हैं, geographical भी हो सकते हैं या फिर सोशो कल्चरल भी हो सकते हैं. ठीक है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, सोशल, देन कल्चरल, इकोनॉमिक. ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स. तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. यस, सो अब जैसे आपने पिछली क्लासेस में भी किया होगा कि व्हाई पीपल प्रेफर टू लिव इन plain areas or mountainous areas. So which area people prefer to live? हाँ जी हरमन. Ma'am, people prefer to live in plain areas. Why they prefer to live in plain areas? Ma'am, because facilities are more in plain areas as water is easily available and land for transport is easily available. Yes, so more facilities are available in plain areas. ठीक है, they can maintaining of cultivation, agriculture is also, setting up for industries, that is also easy, transportation, communication, all these facilities are more available in plain areas than in mountainous areas. और सिर्फ mountainous areas ही नहीं, some other areas, जैसे कि some areas are desert areas, है ना. Desert areas की population, you have read about the desert areas, hot desert, cold desert, है ना. और उसके बाद आपने tropical region, subtropical region, मतलब सभी areas की आपने एक overview लिया हुआ है. तो ज्यादा population कहाँ पे होती है? Plain areas. तो topography means कि वहाँ के relief features कैसे हैं. वहाँ mountainous area है ना, वहाँ के relief, topography या relief features या वहाँ का landscape कैसा है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है, प्लेटू रीजन है, कोस्टल एरिया है, किस तरह का एरिया है. तो इस फैक्टर पे क्या डिपेंड करेगा, वहां की डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की, वहां डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का कैसा है. ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या करना है, दे वांट एरियाज व्हिच आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डिफरेंट सर्विसेज. जैसे आप इसमें एग्जांपल बता सकते हो, सच एज गंगा प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया. ठीक है, दैट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. और अगर सिर्फ इंडिया का नाम बताएं तो आप इसमें और भी बता सकते हो, जैसे नील वैली, रिवर वैलीज, है ना, दे आर ऑल्सो प्लेन एरियाज, दे आर ऑल्सो हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड. और अगर इसके ऑपोजिट हिमालयाज की बात करें, माउंटेनियस एरियाज की बात करें, तो देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो. सो नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर, ये तो एक ज्योग्राफी में अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आ गई टोपोग्राफी, सेकंड हमारे पास आएगा यहाँ पे क्लाइमेट. अब हाउ क्लाइमेट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेट पे कैसे अफेक्ट होगा, विच क्लाइमेट पीपल विल प्रेफर टू लिव. अगर हमने भी रहना है, वी वांट अ न्यू हाउस फॉर अस, तो हम किस एरिया को प्रेफर करेंगे कि हम वहां जाके अपनी लोकेशन बनाएं. अगर हमने इंडस्ट्री भी लगानी है या कुछ भी करना है, तो हम किस जगह को ज्यादा प्रेफर करेंगे. हाँ जी, तो रन्या. Moderate climate, because in moderate climate agriculture is also good. मॉडरेट क्लाइमेट है ना. यस, कि ना तो ज्यादा एक्सट्रीम वहां पे हॉट हो, ना एक्सट्रीमली कोल्ड हो. ठीक है, कि कोई भी टेम्परेचर एक्सट्रीम ना हो. ठीक है, अगर एक्सट्रीम हॉट होगी तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, अगर एक्सट्रीमली कोल्ड होगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है, तो इट मींस क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मॉडरेट. ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ना एक्सट्रीम कोल्ड ना एक्सट्रीम हॉट. क्योंकि अगर एक्सट्रीम हॉट है, डेजर्ट एरिया है, वहां पे भी पॉपुलेशन कम होती है. एक्सट्रीम कोल्ड वाले एरियाज है, जैसे लद्दाख है, इट इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट रीजन इन इंडिया, तो वहां पे भी पॉपुलेशन कम है. इन दोनों एरियाज के भी बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना पिछली क्लास में, सहारा डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट. तो यहाँ पोलर रीजन्स की हम बात कर ले, है ना, तो पोलर रीजन्स जो रशिया के पोलर रीजन्स हैं, रशिया के काफी एरियाज पोलर रीजन में आते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं, बहुत कम है. ठीक है, तो
अंटार्कटिका में वहां पे भी नहीं है, कनाडा वहां पे भी जो पोलर रीजन वाले एरिया है तो वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अफेक्ट होता है क्लाइमेट का। पीपल प्रेफर टू लिव इन मॉडरेट, सो वेयर द क्लाइमेट इज मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर, ठीक है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल फीचर्स, दैट इज सोइल। हाँ जी, सो if soil is fertile at one place, soil is not fertile at other place, so which place people will prefer? कौन से place को prefer करेंगे? एक जगह पे fertile soil मिल रही है, दूसरी जगह पे उन्हें जैसे desert area मिल रहा है, soil fertile ही नहीं है, तो किस area को prefer करेंगे, क्यों prefer करेंगे, why they will prefer? हाँ जी अंजनी। Ma'am, area having fertile soil because there they can do agriculture. Yes, सबसे पहले तो वो जहां पे फर्टाइल सॉइल मिलेगी उस एरिया को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें फूड वगैरह ग्रो करना ही है, वेजिटेशन कल्टीवेशन कुछ ना कुछ करनी है, ठीक है। तो जिस एरिया में फर्टाइल सॉइल मिलेगी वहां पे पॉपुलेशन अपने आप होगी, और जब वहां पे कल्टीवेशन है, लोग वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे फिर उनको लेबर सब कुछ, फिर धीरे धीरे वहां पे इंडस्ट्रीज भी वहीं पे उस एरिया के आसपास, जैसे अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत डेवलप है ना। सॉइल फर्टाइल हमें मेनली कहाँ मिलती है? नियर द रिवर वैलीज, मेनली वहीं पे मिलती है ना जहाँ पे रिवर वैलीज होंगी, क्योंकि उनके पास एलुवियल सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल फर्टाइल होगी, वहां पे कल्टीवेशन अच्छी होगी, और जहां पे कल्टीवेशन अच्छी होगी रॉ मटेरियल मिलेगा, इंडस्ट्रीज उसके साथ ही एस्टैब्लिश हो जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। अब एक चीज, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जहां पे इजीली अवेलेबल है, जैसे हमने किया था कि कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ लगी हैं? जहां कॉटन की कल्टीवेशन हो रही है उसके पास ही कॉटन इंडस्ट्रीज लग जाती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता है ना, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जहां पे सॉइल फर्टाइल होगी वहां पे भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया, है ना, नील वैली इन इजिप्ट, देन हुआंग हे, चैंग जियांग इन चाइना, ये भी वहां पे रिवर वैलीज हैं, ठीक है। तो ये एरियाज भी बहुत हाईली डेवलप्ड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। और इसके बाद नेक्स्ट जो ज्योग्राफिकल फीचर आता है वो आता है वाटर। हाँ जी, सो वाटर। अब वाटर कैसे अफेक्ट करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को? बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ जी, और भी कोई बेटा हैंड रेज करो कि हम कौन से एरिया को प्रेफर करेंगे, वेयर देयर इज रिवर और वेयर देयर इज नो रिवर, नो वेल्स, नो लेक्स, है ना, एंड इवन दैट इज नॉट कोस्टल एरियाज। तो किस एरिया को हम प्रेफर करेंगे? Yes, Lavish, keep your video on, beta. हाँ जी लविश। ओके, देन अकुल आप बताओ। Ma'am, people will prefer to live where rivers are available for fresh water, for agriculture or other activities. क्योंकि वाटर इज नेसेसरी, फर्स्ट नेसेसिटी है हमारी। आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, हमें पीने के लिए चाहिए, अगर हमें और जरूरतें हैं, हमारे डेली के कई काम हैं, उनके लिए हमें वाटर चाहिए, है ना। तो जहां पे हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है हम उस एरिया को प्रेफर करेंगे। और उसके बाद अगर हमने कल्टीवेशन करनी है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो सबके लिए धीरे कहीं ना कहीं हमें वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। और ये भी हमने देखा कि इंडस्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश होती हैं? जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, कोई रिवर या कोई वाटर रिसोर्स नियर अबाउट अवेलेबल है, वहीं पे इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। सो वाटर इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Then comes the next geographical feature, that is mineral. So how mineral play? Because if there are mineral deposits, we have found mineral deposits at somewhere, so then automatically the people started to come and live there.
So why these minerals, they affect the density of population? Because there are many minerals we have found in different parts of world. Somewhere some minerals are found, in some other area other minerals are found. So why people live in these areas? Hanji Taranya? Where there is more availability of minerals, because where there are minerals, then for example diamond, then they can be used in making jewelries, and they can be used in many industries also. Because minerals are important to us in many ways. Different minerals have different uses and different importance for us. And when one thing becomes important, any resource become important, so it increases, its value increases. वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, माइनिंग हो रही है, माइनिंग के लिए अब जो इन्वेस्टर हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेबर वहां पे आ रही है, तो स्लोली एंड स्लोली पीपल आर आल्सो सेटिंग अप लोकेशंस नियर अबाउट, तो इट मींस वहां पे भी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. सो एरियाज विच आर हैविंग मिनरल डिपॉजिट सच एज डिफरेंट मिनरल्स, और यहाँ पे डिफरेंट माइंस वहां पे डेवलप हो जाती है, जहाँ पे डिस्कवरी होगी ऑयल की, वो कंट्रीज भी कितने डेवलप हो गए, और वहां की डेंसिटी भी धीरे धीरे वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है ना. तो सच एज द डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट, तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे एरियाज है वहां पे, लोग भी वहां पे जाके सेटल होना शुरू हो गए और कंट्रीज भी बहुत डेवलप हो गए. ठीक है, सो ये थे सारे हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स. इसके बाद हम करेंगे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फीचर्स. ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल. तो ये अभी हमारे पास यस 2-3 मिनट्स हैं, तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, आपके माइंड में ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक. ठीक है, ज्योग्राफिकल जो कि पूरी हमारी नेचर से ही सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, ये है ना, सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, तो जहां पे नेचुरल ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पे डेंसिटी जो है उस पर डिपेंड करती है. अब सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कौन कौन से फैक्टर हैं? हाँ जी, पहले हम सोशल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, इकोनॉमिक विच आर रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, रिलेटेड टू मनी, एंड देन कल्चरल विच आर रिलेटेड टू आवर डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि हर कम्युनिटी का कल्चर अलग होता है. ठीक है, तो वो जो उससे रिलेटेड है. सबसे पहले सोशल फैक्टर्स. हाँ जी, यस अकुल. Yes. Ma'am, people would prefer to live in urban areas where all the facilities like internet, education, health are easily available. तो सोशल मीन्स कि व्हेन वी आर सोशली, हम सोशली यहाँ पे सभी सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं, तो सोसाइटी के बीच में रहते हुए हमें ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी हम उसी एरिया को प्रेफर करेंगे. अब फैसिलिटीज कौन कौन सी? हमें हाउसिंग अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी सभी कुछ अच्छी मिल रही है. ठीक है, हमें अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल रहा है, हमें वहाँ पे अपनी एजुकेशन, जो भी हमें और फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए, वो भी हमें इजीली अवेलेबल मिल रही है ना. तो मोस्टली वो सिटीज में ज्यादा होती हैं, तो इसलिए सिटीज भी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं देन द विलेजेस. विलेजेस कम पॉपुलेटेड होते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज इज मोर. तो इसलिए ये फैसिलिटीज भी डिपेंड करती है कि सोशली हाउ मच फैसिलिटीज विच आर नीडेड फॉर आर सोशली एक्टिव लाइफ. ठीक है, तो उसके लिए जो जो हमें फैसिलिटीज चाहिए तो वो कहाँ पे अवेलेबल है, वहां पे भी डेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो इसके बाद जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ बेटा? क्लियर? ओके, सो इसके साथ ही अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, फिर इसके बाद आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. आपने अपना काम नहीं भेजना शुरू किया बेटा साथ साथ में. ठीक है, सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री के चैप्टर्स का काम भेजा है. ठीक है, और अब हमारा तो हिस्ट्री का भी टॉपिक, 2 टॉपिक हिस्ट्री का कंप्लीट है. ठीक है, तो साथ साथ में अपना काम भी भेजना शुरू करो बेटा. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि लास्ट टॉपिक कंप्लीट होगा फिर ही आपने पूरी की पूरी नोटबुक भेजनी. ओके, थैंक यू बेटा.